થોડાક જ કલાકો બાકી છે અને પછી ભારત એક રેકોર્ડ સર્જશે, કારણ કે ચંદ્રયાન-3 એ આજે ચંદ્રની સપાટી પર લેન્ડ કરવા જઈ રહ્યું છે। ત્યારે કહી શકાય છે કે આજે ગણતરીના જ કલાકો હવે બાકી છે અને ત્યારબાદ ઇતિહાસ સર્જાશે। તેને લઈને દેશભરમાં અલગ અલગ પ્રકારે પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે, પ્રાર્થનાઓ કરવામાં આવી રહ્યા છે, હવન કરવામાં આવી રહ્યું છે। અમદાવાદ ખાતે સાયન્સ સિટીમાં પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને તેને લઈને ચંદ્રયાન-3ની સફળતા માટે પ્રાર્થના પણ કરવામાં આવી છે અને તેને લઈને એક્સપર્ટ સાથે ત્યાં ચર્ચા વિચારણા પણ કરવામાં આવશે। હવે મહત્વપૂર્ણ છે કે છેલ્લા 15 મિનિટ જે છે તે સૌથી વધુ મહત્વપૂર્ણ કહી શકાય। સાયન્સ સિટીમાં વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે। સાયન્સ સિટીમાં મિશન ચંદ્રને લઈને ખાસ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ પણ જોવા મળી છે અને આ વચ્ચે ચંદ્રયાન-3ની વિવિધ કૃતિઓ પણ રજૂ કરવામાં આવી છે। ચંદ્રયાન-3ની સફળતા થાય તે માટે દેશભરમાં અત્યારે પ્રાર્થના કરવામાં આવી રહી છે, હવન કરવામાં આવી રહ્યું છે। મહત્વનો આજનો દિવસ છે, રેકોર્ડ સર્જાવાનો છે, તેને લઈને સવારથી જ ભારે ઉત્સાહનો માહોલ પણ દેશભરમાં જોવા મળી રહ્યું છે। અમદાવાદ ખાતે પણ પ્રોગ્રામનું આયોજન સાયન્સ સિટી ખાતે કરવામાં આવ્યું છે। આ વચ્ચે તમને જણાવી દઈએ કે અમદાવાદના સાયન્સ સિટી ખાતે અલગ અલગ પ્રકારોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ચંદ્રયાન-3ની સફળતા માટે આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે અને તેને લઈને એક્સપર્ટ સાથે ચર્ચા વિચારણા પણ કરવામાં આવશે। આજે દેશભરમાં ભારે ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। અલગ અલગ જગ્યાઓ પર પ્રાર્થના પણ કરવામાં આવી રહી છે, હોમ હવન પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે। ગણતરીના જ કલાકો હવે બાકી છે જ્યારે ચંદ્રયાન-3 એ ચંદ્રની સપાટી પર લેન્ડ કરવાનો છે અને 15 મિનિટ ખૂબ જ મહત્વના કહી શકાય અને તે દરમિયાન જે રેકોર્ડ સર્જાશે સૌ કોઈ તેની રાહ જોઈ રહ્યું છે। તેને લઈને અમદાવાદ ખાતે પણ સાયન્સ સિટીમાં પ્રોગ્રામ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। ચંદ્રયાન-3ની સફળતા માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે। છેલ્લા જે 15 મિનિટ છે એ સૌથી મહત્વના છે, કારણ કે એ દરમિયાન લેન્ડિંગ થવાનું છે। વિક્રમ લેન્ડર જે છે ચંદ્રની સપાટી પર લેન્ડ કરશે, તે દરમિયાન કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે સૌ કોઈની નજર તેના પર છે અને દેશની સાથે સાથે વિશ્વની પણ નજર આ વખતે ચંદ્રયાન-3 પર પણ છે। તો ચંદ્રયાન-3 જ્યારે એ ચંદ્રની સપાટી પર લેન્ડ કરવાનો છે તેને લઈને દેશભરમાં અને ખાસ કરીને અમદાવાદમાં પણ પ્રોગ્રામ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે સાયન્સ સિટી ખાતે। તેને લઈને સંવાદદાતા જયેશ પ્રજાપતિ આપણી સાથે લાઈવ જોડાયા છે। જયેશ, કયા પ્રકારનો માહોલ અત્યારે સાયન્સ સિટી ખાતે જોવા મળી રહ્યો છે? આપણે જણાવી દઉં કે જે સિનિયર સાયન્ટિસ્ટો છે જે હાલ આવ્યા છે જે ચંદ્રયાન-3 સક્સેસ બનાવવા માટે શું વૈજ્ઞાનિકે કર્યું છે એ વિશે માહિતી લોકો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે। આપણી સાથે સિનિयर साइंटिस्ट है ये जोड़ा है। आप चंद्रयान विषय बात करें तो सर जो लास्ट 15 मिनट होगी वो बहुत इम्पोर्टेंट होगी, किस तरह से चंद्रयान लैंड करेगा? जी आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है और सबसे पहले तो मैं आपको पूरे इसरो टीम की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं। हमारे लिए एक गौरवान्वित क्षण है और गौरवान्वित इसलिए कि चंद्रयान की पूरी जो मिशन की सीरीज शुरू की उसके अंदर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि आज शाम को 6:04 पे हम लोग प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जब ये चंद्रयान-3 विक्रम लैंडर चंद्रमा की धरती के उसके जो दक्षिण ध्रुव है जहां पर नियत उसकी निश्चित की हुई जगह पर ये आज लैंड करेगा। पिछली बार चंद्रयान-2 पे भी यही लैंडर हमें एक तरह से विक्रम लैंडर उस पर भी था और वो उतरा था, लेकिन वो उतरने से पहले यानी सफलतापूर्वक लैंड होने से पहले थोड़ा क्रैश हो गया और दूसरी जगह जा गिरा था। तो वो एक व्यवधान आया और उसकी असफलताओं से हमने बहुत कुछ सीखा। तो जो सीखा
और नई और अध्याय जोड़ करके इस बार डिजाइन बनाई कि किसी भी तरह की मुसीबत आए, किसी भी तरह का व्यवधान आए, समस्या आए, लेकिन इस बार सफलतापूर्वक वो लैंड हो ही जाए। व्यवधान आ सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आ सकते हैं, या उसकी जो दिशा जो चल रही है, तो उसके अंदर जो उसको रोकने के जो फोर्सेस होते हैं, जो पिछली बार बराबर नहीं हुए थे, तो उसके अंदर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो गलत जगह चला जाए। तो इस बार क्या किया है कि जहां उसको साउथ पोल पे उतरना है, उस जगह का बिल्कुल एक मैप, एक इमेज के रूप में अंदर पहले से फिट किया हुआ है। और उस चंद्रयान 3 के इस लैंडर के अंदर कैमरा लगा रखा है, और उसमें लगभग 4000 पिक्सल्स यानी पिक्चर एलिमेंट्स हैं। तो वो 4000 पिक्चर एलिमेंट्स बराबर, बिल्कुल समझिए मिलीमीटर एक्यूरेसी से देख देख रहे हैं कि इसको किस दिशा में जाना है। और वो कह रहा है कि वो जो 4000 एलिमेंट है और उसको जहां उतरना है, वो उसकी फोटो लेके वो जो लगा रखी है उससे तुलना करता रहता है कि मैं सही जगह अभी भी जा रहा हूँ, दिशा सही है मेरी, और मेरी गति सही है। तो ये करके वो उस दिशा में अग्रसर हो रहा है। तो इस बार इसलिए मतलब असफल होने के चांसेस लगभग शून्य है, ये कह सकते हैं। बात की जाए तो लैंडिंग होता है, तो लैंडिंग में किस तरह से यहाँ से सिग्नल दिया जाएगा, चंद्रयान सिग्नल देगा, वैज्ञानिक किस तरह से सोचेंगे कि यही जगह पे अपने लैंडिंग करवाना, वो पूरी प्रोसेस कैसे होती है? नहीं, इस बार जो है बहुत ज्यादा कंट्रोल इधर से रखने के बजाय ऑपरेशन का रखा है, लेकिन ज्यादातर जो सिस्टम है वो चंद्रयान 3 के इस लैंडर में ही इनबिल्ट है। वो खुद डिसाइड करने वाला है कि मुझे बराबर सही जगह जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। क्योंकि हम यहाँ से कुछ करने जाएंगे तो गलती पिछली बार की तरह कुछ हो सकती है, लेकिन इस बार वो स्वयं ही डिसीजन लेने वाला है। यहाँ पर तो वो जब ओनली उसकी जो ऑर्बिट में परिवर्तन करना कक्षा के अंदर, जैसे आपने सुना ही होगा अभी 2-3 दिन पहले से ही उसको 25 किलोमीटर बाई 170 किलोमीटर के अंदर लाए। तो वो धीरे धीरे जो ऑर्बिट कम करते जाना है, वो रखा है लोकेशन यानी जगह, उसका निर्णय वो उसको खुद को लेने दीजिए। और वो अब जितनी भी बुरी परिस्थितियां वो हो जाए तो भी वो इस बार जो है, यानी मैं कह रहा था कि व्यवधान हो जाए तो भी वो अपनी जगह तो उतरेगा ही। ओनली यही है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग बराबर हो जाए। उसके लिए वो जो 4000 अंदर पिक्सल वाले कैमरे हैं और वो जो इमेज ले रहे हैं और वो कंपेयर करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, तो आप मेरे लिए एक तरह से रेफरेंस है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं जयेश प्रजापति से इतने सेंटीमीटर दूर हूँ, है ना। तो ये अगर मैं नहीं कह पाऊं तो मेरे असफल होने के चांस है, लेकिन अगर मैं ये बराबर गिनती करके कह पाऊं तो मेरे सफल चांसेस हैं। तो ये चीज इस बार की गई। अब जहां तक दूसरा अंतिम 15 मिनट जो होते हैं, वो कोई भी लैंडिंग जब होनी होती है तो लैंडिंग के टाइम पे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि काम थोड़ा स्पीड से करना है अब उसको, कि वो कैमरे में इमेजेस ले, रेफरेंस प्लेट से कंपैरिजन करे और वो निर्णय लेके उसी अपनी गतिमान दिशा में आगे बढ़े। तो वो काम 15 मिनट में। और इधर से इसरो के लिए भी कि वो अब सही राह पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, कहीं इधर इधर अगर ज्यादा भटक जाए तो फिर यहाँ से सिग्नल दे करके उसको सही राह पे लाना आवश्यक होता है। तो वो 15 मिनट जरूर दिल की धड़कन बढ़ाने वाले आप कह सकते हैं कि वो इसरो के लिए भी हैं, सैटेलाइट के लिए भी है, और हम सब पूरे भारत के लोगों के लिए। ये जो जगह पे लैंडिंग होगा, उस जगह पे वो भारत ही पहला ऐसा देश होगा जहाँ लैंडिंग करवा रहा है। अभी तक की जो पिक्चरें मिली है दुनिया में चंद्र की, और अभी जो चंद्रयान भेज रहा है, क्या अंतर देख रहे हो? किस तरह का आगे अंतर मिल सकता है? क्या निर्णय हो सकता है? चंद्र पे क्या हो सकता है? पानी हो सकता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सबसे पहली बात तो साउथ पोल पे जाने की हिम्मत किसी देश ने की नहीं, ये भारत ने ही हिम्मत की है। पिछली बार भी कर रहा था, इस बार भी कर रहा है। और साउथ पोल पे जाने के पीछे मूल उद्देश्य है, हर कोई जाना तो चाहता है, और वो जाना इसलिए चाहता है कि वहां पर साउथ पोल पे जो अंधेरे की साइड है, जो सूर्य की ओर नहीं देखता है, लेकिन वहां जो बड़े बड़े क्रेटर्स हैं और कई सारे क्रेटर्स हैं, उनके अंदर पानी होने की संभावना, प्रचुर मात्रा में पानी होने की संभावना ज्यादा है।
अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि साहब वो तो डार्क साइड तो है, फिर वहां पानी तो आएगा ही कैसे? वैसे चंद्रमा पे ही पानी कहाँ से आएगा? ये हर कोई, अभी पिछली बार ही जो है मैं महाराष्ट्र में एक स्कूल के अंदर जब लेक्चर दे रहा था, तो वहां एक बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि आखिर ये निर्जन पड़ा हुआ चंद्रमा जिसपे कुछ भी नहीं है और कोई होने की संभावना, आखिर वहां पानी कहाँ से आएगा? तो उसके जवाब में मैंने उसको बताया था कि दो कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वहां पानी है। एक तो ये, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है, तो अधिक से अधिक जो है कॉमेट्स, जो अपन कहते हैं धूमकेतु, पुच्छल तारे, मीटियोराइट्स जो है, इसके बाद एस्टेरॉइड्स, ये बहुत संख्या में उसके ऊपर गिरते रहते हैं। गिरते तो हमारी पृथ्वी के ऊपर है, लेकिन उनके टुकड़े हो जाते हैं, हमारे यहाँ वायुमंडल है इसलिए। तो उसमें से बहुत सारे धूमकेतु जो है, मीटियोराइट्स हैं, एस्टेरॉइड, उनमें पानी भरा हुआ होता है और वो पानी से ही भरे हुए अंदर चले जाते हैं। उसकी वजह से वो पानी उसके अंदर प्रचुर मात्रा में, और वो विशेष करके साउथ की साइड में ज्यादा गिरते हैं। एक दूसरा कारण भी हो सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कारण, सूर्य जो है उसमें से 2400 घंटे, जिसको कहना चाहिए 24x7 कंटिन्यूस, लगातार एक, हम बोलते हैं सौर हवा चलती रहती, सोलर विंड। वो सोलर विंड में दो चीजें होती है मुख्य रूप से, प्रोटॉन्स और आयंस, ये ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन, प्रोटॉन का सिंपल हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन बहुत संख्या में वहां नीचे आकर के, क्योंकि वहां पे भी एटमॉस्फेयर, जैसे बताया, एटमॉस्फेयर है नहीं, तो सूर्य की साइड वाली जो लाइन है उधर, लेकिन वो तो चाहे सौर हवा जो है वो तो दोनों साइड से चलती रहती है। और वो जो नीचे ऑक्सीजन के मिनरल्स हैं, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उससे ऑक्सीजन से वो इंटरेक्ट करके, उससे रिएक्शन करके वो फिर पानी बनाते रहते हैं। और ये पानी लगातार मॉलिक्यूल्स के रूप में बनता है। अब सवाल ये आता है कि तो अगर पानी है, हर कोई, ये तो बच्चे ने पूछते हैं कि फिर तो ये तो समुद्र की तरह था, समुद्र जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, वहां ये पानी जो है वो दो तरह से हो सकता है, और ये पूरे भारत के बच्चों को और सभी को जानने की जरूरत है कि या तो वो हाइड्रेट्स के रूप में होगा या हाइड्रो ऑक्साइड के रूप में होगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स H2O के रूप में होता है, या OH, हाइड्रो ऑक्साइड मतलब OH जो बोलते हैं माइनस, यानी आयन के रूप में होता है। और हाइड्रेट्स यानी जो ऐसे ऐसे पदार्थ जैसे कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट, जिससे पानी चिपकता है, पानी के अणु है वो चिपक सकता है, तो उस फॉर्म में है। लेकिन उस सारे को अगर हम टेक्नोलॉजी ऐसी लगाएं तो फिर हम उसको लिक्विड वाटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बाद में नया अध्याय खुलेगा, भारत आगे नई जो है टेक्नोलॉजी के साथ आगे नया कदम रखेगा, और इसके लिए भारत का भविष्य जो है, इसरो का चंद्रयान के लिए, मिशन के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य है। थैंक यू वेरी मच। सीनियर साइंटिस्ट राजमल जैन ने बहुत कुछ बताया। अभी एक सवाल है लास्ट सर, कि जिस तरह से बात की जाए, अभी तक को जो चंद्रमा के पिक्चर्स मिले दुनिया के सभी जगह ने, इस बार साउथ से जो सफलता से लैंडिंग कर लेगा भारत, तो किससे उम्मीद है, किस तरह से अलग संशोधन हो सकता है इस? मैंने बताया बहुत तरह से संशोधन होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इससे जो अभी इसके अंदर ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जो मिनरल्स, मिनरल्स यानी अंदर जो धातु जो हैं, इसके बाद जो पदार्थ हैं अंदर, उनका जो है पता लगाएगा। अब उनसे ही हमें ये, कि जैसे कि मैंने बताया मैग्नीशियम सल्फेट ज्यादा है, कैल्शियम सल्फेट ज्यादा है, आयरन ज्यादा है, आयरन सल्फेट हो सकता है, या आयरन ऑक्साइड ज्यादा है ना, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रॉक्स हैं। तो ये इन धातुओं से जो जो अंदर पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, उनसे पता चलेगा कि कौन सा किस क्वांटिटी में उपलब्ध है, किसकी उपलब्धता ज्यादा है, प्रचुर मात्रा में है। इसका अर्थ ये कि किस किस तरह के खनिज हैं, मिनरल्स मीन्स खनिज, तो उनसे पानी किस साइड में होगा और कितनी मात्रा में होगा, और दूसरे खनिज हैं उससे मतलब जो है विश्व के कल्याण के रूप में कैसे काम में लिया जा सकता है। तो भारत, अगर आज ये लैंडर अब सक्सेस हो गया और ये इसके एक्सपेरिमेंट जो है वो पता लगाएंगे, तो भारत एक नया कीर्तिमान भी साबित करेगा इस शोध के अंदर कि वहाँ क्या खनिज हैं, क्या धातु हैं, किस तरह के तत्व हैं,
और उनका उपयोग आगे भविष्य में नई पीढ़ी के लिए किस तरह से किया जा सकता है, न केवल युवाओं के लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा अध्याय प्रारंभ होगा। લવલીન વાત કરી દઉં કે જે સાયન્ટિસ્ટ હતા, સિનિયર સાયન્ટિસ્ટ એમને રાજમલ જૈને બહુ જ સીધી રીતે અને બહુ જ ઊંડાણથી વાત કરી કઈ રીતે જી લેન્ડિંગ થશે અને એ પછી ભારત કઈ રીતે જે વિક્રમ છે તે વિક્રમ સર્જશે અને ટેકનોલોજી માટે ભારત કઈ રીતે આગળ આવશે. જી લવલીન. બિલકુલ. અને જયેશ, જે રીતે 4 ફેઝિસ રહેવાના છે લેન્ડિંગના, કઈ રીતનો માહોલ ત્યારે જોવા મળશે જે દરમિયાન લેન્ડિંગ થાય છે? કારણ કે 4 ફેઝિસ અને અંતિમ તબક્કો ચાલી રહ્યું છે, એટલે કપરી પરિસ્થિતિ પણ કહી શકાય. जी 4 फेजेस की बात करिए तो अपने साइंटिस्ट से हमने जो जान जो 4 फेजेस होते हैं जो लैंडिंग के, तो कौन से 4 फेज होते हैं? अब वो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, तो मैं नहीं कह सकता कि वो 4 फेजेस कौन से होते हैं वगैरह। वो आप जो लैंडिंग वाले एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। જે રીતે લવલીન વાત કરવા જઈએ તો જે સાયન્ટિસ્ટ અલગ અલગ વિભાગો હોય છે, જેના લેન્ડિંગના એક્સપર્ટ હોય છે, જે ઉડાનના એક્સપર્ટ હોય છે, પછી લેન્ડિંગ થયા પછી જે કાર્યરતના એક્સપર્ટ હોય છે, તે અલગ અલગ સાયન્ટિસ્ટ. પણ સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે જે લેન્ડિંગના જે 15 મિનિટ છે, જે 15 મિનિટમાં શું મહત્વપૂર્ણ છે અને કઈ રીતે લેન્ડિંગ થશે, કઈ રીતે જે પિક્ચર આવશે અને કઈ રીતે સેફ જગ્યાએ ઉતરણ કરવાનું છે, તેની ઉપરથી આજે જે ભારત છે તે કીર્તિમાન રચવાની પૂરેપૂરી તૈયારીમાં છે. બિલકુલ. આજે લેન્ડિંગની સમગ્ર વાત થઈ રહી છે, સાંજની રાહ સૌ કોઈ જોઈ રહ્યા છે. પણ ઇનકેસ જો લેન્ડિંગ નહીં થાય તો આવનારા સમયમાં એક હજી 27 તારીખની ડેટ આપવામાં આવી છે, પરંતુ સૌ કોઈ એ જ ઈચ્છે છે કે આજે સોફ્ટ લેન્ડિંગ થઈ જાય. એટલે સોફ્ટ લેન્ડિંગ કઈ રીતની રહેશે, જો તેના પર વધુ માહિતી મળી શકે. હજી વાત કરીએ જઈએ તો જે સોફ્ટ લેન્ડિંગ થવા માટે જે દુનિયાભરના લોકો પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે, સાયન્ટિસ્ટો પણ કહી રહ્યા છે. આપણે इसरो के चीफ ने बोला था ऑल इज वेल. तो सॉफ्ट लैंडिंग हो सकेगी, उनका ये संकेत था. आपके हिसाब से जो सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो किस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग में कोई दिक्कत अभी आ सकती है या ऑल इज वेल? मेरे अनुमान से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे मैंने पहले प्रारंभ में बताया था कि इस बार इसरो ने जो डिजाइन बनाई है उसमें किसी भी तरह के व्यवधान आ जाए तो भी लैंडिंग तो होगी ही, और वो सफलतापूर्वक ही होगी। तो सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये कि धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाएगा और बिल्कुल आराम से, जैसे कहते हैं ना कि सीढ़ी जो है वो बराबर वहां पे अपना कदम रखेगी, तो उसमें कोई जो है व्यवधान नहीं आने वाला। और सॉफ्ट लैंडिंग से एक और बड़ा फायदा होने वाला है। आपको ये भी एक प्रश्न है कि सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग में क्या है, तो सॉफ्ट लैंडिंग से ये है कि अंदर बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, आगे अंदर जो आगे के शोध उपकरण जो हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, तो वो अगर खराब ना हो जाए और उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब नहीं हो जाए, उनके कार्य प्रणाली खराब नहीं हो जाए, इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि मैंने बताया कि धातु और खनिजों का पदार्थ का पता लगाना, तो वो अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी एक वर्णक्रम की जो है मशीन लगी हुई है, तो वो पता, तो वो उसमें अल्फा पार्टिकल डालेगा और फिर देखेगा कि किस तरह से जो है अंदर से अलग अलग जो धातु हैं वो वहाँ पर उपस्थित है। उन धातुओं की उपस्थिति, खनिजों की उपस्थिति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। आप पूछ सकते हैं मेरे को क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सभी को जानना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये अभी इसरो ने या दूसरे देशों ने ध्यान नहीं दिया है, ये मैं आपको पहली बार नई बात बताना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से। अभी जहां पर भी हम इतना नॉलेज है धरती के ऊपर से नॉलेज, कि जहां अगर मॉइस्चर होता है, नमी बोलते हैं जो है ना, भेज, गुजराती में भेज बोलते हैं, तो भेज हो, नमी हो, मॉइस्चर हो, तो हम तो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि वहां पानी है, तो उसकी वजह से इतना तो पानी है, तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। इसका मतलब ये कि चंद्रमा की सतह के नीचे लगभग 1 मीटर से 10 मीटर 100 मीटर तक के अंदर छोटे सूक्ष्म जीव होने चाहिए। ये कोई बात नहीं कह रहा, और जब तक वो सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो फिर हम जीव की उत्पत्ति की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसका अर्थ ही यही कि जीव की उत्पत्ति की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि अगला इसरो का मिशन ये होना चाहिए, या दूसरे भी देशों का,
कि जब अगर ये आज पानी का सब पता लग जाएगा, इन खनिजों का पता लग जाएगा, तो भारत इसमें आगे बढ़े और ये पता लगाए कि वहाँ जमीन मिट्टी के अंदर कई तरह की टेक्नोलॉजी हो सकती है, वहाँ सूक्ष्म जीव भी उपस्थित है। जैसे ही सूक्ष्म जीव का अगर उपस्थिति हो जाएगी, पता लग जाएगा, तो हम आगे बढ़े जो है इवोल्यूशन, जो लाइफ इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसकी जो है सक्सेस हो पाएंगे और वहाँ और भी आगे नए नए कई तरह के जो है जो स्पेस बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो फिर किए जा सकते हैं। अभी तक जो पिक्चर भेजी गई है जहाँ बहुत बड़े खड्डे दिखाई दे रहे हैं जिस तरह से, उस बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, जो बड़े बड़े खड्डे हैं, बड़े बड़े दो तो बड़े विशाल खड्डे हैं जिनके बारे में चर्चा हो रही है, तो विशाल खड्डे जो हैं उनके अंदर तो प्रचुर मात्रा में पानी होना चाहिए। यानी किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में नहीं, मैं बात कह ही रहा था कि उसमें नहीं, हाइड्रेट्स और हाइड्रोक्साइड। मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा, हाइड्रोक्साइड यानी OH एक तरह से नेगेटिव आयन होता है, वही फिर जो एक हाइड्रोजन प्रोटॉन जो आता है उससे मिल करके H2O बनता है ना। और इसी तरह से हाइड्रेट जो है जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, वो पानी के मॉलिक्यूल्स को चिपका के रखते हैं, अपने साथ रखते हैं। आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूं मैं, आपको अपने धरती पर अगर जब अंडरग्राउंड वाटर जो ढूंढते हैं, जमीन में पानी कहाँ है, तो मालूम है सबसे पहले क्या करते हैं? वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रॉक्स को ढूंढते हैं। जहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रॉक्स मिल जाती हैं तो वो कहते हैं यहाँ तो पानी होगा ही होगा, क्योंकि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता ही रखता है। तो इसका मतलब प्रचुर मात्रा में वहां पानी होगा। इसी तरह से ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे, जो पता लगाएंगे कि कहाँ कहाँ किस किस क्रेटर के आसपास या जमीन में किस किस गहराई जी तक क्या क्या है। जी जी जयेश, રવિન વાત કરવા જઈએ તો જે પ્રમાણે સિનિયર બિલકુલ સાયન્ટિસ્ટે અમને જણાવ્યું કે જે મોટા ખાડાઓ છે એમાં બહુ માત્રામાં લિક્વિડ હોવું અનિવાર્ય જી છે અને જયેશ, ખાસ કરીને આના પછીની આગળની જે પ્રોસેસ હશે જે સૂક્ષ્મ જીવોની હશે બિલકુલ તેવું તેમનું કહેવું છે। જી બિલકુલ જયેશ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ અને સાથે જોડાવા બદલ। તો જે રીતે સોકોઈ અત્યારે રાહ જોઈ રહ્યા છે, સાંજની જ રાહ છે અને એક નવો રેકોર્ડ સર્જાય, ઇતિહાસ રચે, સોકોઈ એમાં જ છે। દેશ વિદેશની સાથે સાથે તમામ લોકો એ પ્રાર્થનાના મૂડમાં જોવા મળી રહ્યા છે, પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે સોફ્ટ લેન્ડિંગ થાય અને આ વખતે ભારત એક નવો ઇતિહાસ સર્જે।